नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यूपीसी टॉक। मेरा नाम है सागर वानखड़े, मैं महाराष्ट्र का हूँ एंड मैं एक एडुकेटर हूँ। तो आज की इस लेसन में हम सीखेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का पहला चैप्टर आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ इंडिया। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप बना सकते हो, क्योंकि दिए गए वीडियो में बहुत सी इजीली मैंने नोट्स को मेंशन किया हुआ है। तो आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ इंडिया। What is culture? Culture is a derived from the Latin term curs or curs, meaning tilling or cultivating or refining and worship. Means cultivating and refining a thing to such an extent that in product evoke our admiration and respect. In Sanskrit, it is known as a Sanskriti, and the term Sanskriti has been derived from the root kri, to do. Kri matlab to do of Sanskrit language. Three words came from the root kri, prakriti. Prakriti means basic term or condition, and Sanskriti means refined matter or condition. And एक और वर्ड आता है, उसका नाम है विकृति। विकृति यानी मॉडिफाइड और डिकेड मैटर और कंडीशन। मॉडिफाइड यानी कि अपडेटेशन। Simply when a prakriti or a new material is refined, it become a Sanskriti, and when a broken or damaged, it become vikriti. यानी कि अगर कोई भी चीज़ या संस्कृति या कल्चर हमारा डैमेज हो जाता है, यानी कि जैसे कि कोई भी अगर एक आधा मंदिर हो और डैमेज हो गया तो हम उसको विकृति कह सकते हैं। एंड फिर आगे बात करते हैं एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। कल्चर में क्या क्या आता है? कल्चर में आता है आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, फिलोसॉफी, रिलीजन एंड साइंस। Also include the custom, tradition, festivals, way of living and one outlook on various issue of life। यानी कि जो कल्चर है, कल्चर में क्या क्या आता है हमने देखा है। उसमें कला आती है, संगीत आता है, ज्ञान आता है, धर्म आता है, विज्ञान आता है, ये सब कल्चर में आता है। अब बात करते हैं कल्चर के बारे में। देखिए तो कल्चर में टू टाइप्स पड़ते हैं, यानी कि कल्चर हैज अ टू डिस्टिंक्टिव कंपोनेंट। फर्स्ट है मटेरियल कल्चर एंड सेकंड है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में आता है द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ such as our dress, food and household goods। and non-material culture में आता है refers to ideas, thoughts and beliefs। यानी कि non material, ये दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। ideas, thoughts and beliefs। understanding of civilization and culture। civilization having better way of life and sometimes making a nature meant to fulfill their needs। also include organizing societies into politically well-defined group working collectively for improved conditions of life in a matter of food, dress, communication and so on। One possessing wealth may be considered as civilized, but he may not be cultured। Sometimes it led to war and holocausts, resulting in a mass destruction of human beings। Of culture, it refers to the inner being, a refinement of a head and heart। also include art and science, music and dance, and various higher motions of human life। One who may be poor and wearing cheap clothes may be considered uncivilized, but still he or she may be most cultured person। Culture is the higher level of inner refinement of a human being। Cultural heritage, the culture we inherit from our predecessors, it's called cultural heritage। Humanity as a whole has inherited a culture which may be called human heritage। A nation also inherits a culture which may be termed as a national cultural heritage। It includes all those aspects of or values of culture transmitted to human beings by their ancestors from generation to generation। Example: Taj Mahal, Swaminarayan Temple of Gandhinagar and Delhi, Red Fort of Agra, Delhi Qutub Minar, Mysore Palace, Jain Temple of Bhilwara, Nizamuddin Alauddin, Golden Temple of Amritsar, Gurudwara Sissaganj of Delhi, सांची स्तूपा, क्रिश्चियन चर्च इन गोवा, इंडियन गेट। आपने देखा होगा कि हमारे भी घर में कल्चर चला आता है, यानी कि एक जनरेशन टू अगले जनरेशन किसी किसी के घर में कल्चर रहता है कि उनका गॉड रहता है, तो हर जनरेशन उस गॉड की पूजा करते हैं। ये रहता है कल्चर। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। कल्चर इज अ लर्नड एंड एक्वायर्ड। कल्चर को सीखा जा सकता है। कल्चर इज अ शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर को हम शेयर कर सकते हैं अदर मेंबर्स के साथ। कल्चर इज अ क्यूमुलेटिव। कल्चर चेंज, कल्चर बदलता भी है। कल्चर इज अ डायनेमिक। कल्चर बहुत बड़ा है। कल्चर की वजह से रेंज ऑफ परमिसिबल बिहेवियर पैटर्न। कल्चर हमारा बिहेवियर का पैटर्न भी फिक्स करता है। कल्चर इज अ डाइवर्स। कल्चर बहुत
अलग अलग होता है, यानी कि उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी रहती है। कल्चर इज आइडलाइजेशन, कल्चर का एक आइडल रहता है, कल्चर का एक मोटिव रहता है। इंडियन, अब बात करते हैं इंडियन आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर, it is not a modern phenomenon since as soon as the early caveman times. Combination of needs, imagination, capabilities of builders and capabilities of the workers. ये जो आर्किटेक्चर है ये मॉडर्न फिनोमिना नहीं है, ये अभी अभी आया हुआ ही नहीं है, ये बहुत पहले से, ये एंशियंट से। आपने देखा होगा कि जो भी एंशियंट की केव थे वो आदमी ने ही बनाए, तो हम इससे जान सकते हैं कि आर्किटेक्चर बहुत पुराना है। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। Architecture design and construction of buildings with various type of material used like stone, wood, gas, grass, metals. Involves engineering, mathematics and depends upon measurement. Architecture को engineering, mathematics and वो measurement पे depend रहता है। अब बात करते हैं स्कल्पचर के बारे में। 3D वर्क ऑफ आर्ट मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ मटेरियल, ये 3D वर्क रहता है। इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड मे नॉट डिपेंड ऑन मेजरमेंट। जैसा कि हमने देखा कि आर्किटेक्चर है इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेजरमेंट पे डिपेंड रहता है, लेकिन स्कल्पचर है मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं रहता है। इसको सिर्फ एक क्रिएटिविटी एंड एक इमेजिनेशन चाहिए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अब एंशिएंट के बारे में जानते हैं। हड़प्पन आर्ट 2500 to 1800 BC, मॉडर्न आर्ट 300 BC, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। गुप्ता एज आर्ट 3rd AD to 6th century, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। मिडिवल में आता है दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526, मुगल पीरियड 1526 to 18th century। मॉडर्न में आता है नियो गोलिथिक एंड नियो रोमन। तो गाइस चले हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप ऑनलाइन आइएगा। थैंक यू।